Good morning, students. Now, in the last lecture, we have discussed the diffraction of light, that is the bending of light around the corners of an obstacle or aperture. So now there are two types of diffraction. Fresnel diffraction, it is that diffraction in which the source of light and screen both are at finite distance from each other. दोनों क्या हैं ये? These are at finite distance from each other, right? अगर हम ये बात करें, this is the source of light और यहाँ पर ये आपकी क्या है? This is aperture. तो यहाँ पर आपको ये क्या होगा? स्क्रीन. तो यहाँ स्क्रीन और सोर्स दोनों क्या है? फाइनाइट डिस्टेंस पे, राइट? दिस इज द aperture. AB is a aperture. Now, Fraunhofer diffraction. What is Fraunhofer diffraction? It is that diffraction in which the source of light and the screen are effectively at infinite distance from each other. It is in this the source of light and and screen are at infinite distance फ्रॉम ईच अदर. तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम ये बात करते हैं दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, तो हम इसके आगे क्या रख लेते हैं? एक लेंस, ठीक? तो फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ लाइट द लाइट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये क्या हो जाएगी? इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड इट इज मेड टू इंसिडेंट ऑन अपर्चर एंड देन इट इज मेड टू फोकस्ड ऑन अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अदर लेंस. तो ये कौन सा हो जाएगा? Fraunhofer diffraction, in which the diffraction takes place when source of light and screen are at infinite distance. क्योंकि रेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से, और कहाँ फोकस हो रही है? ये इसके स्क्रीन पर. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट. डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट. क्या है ये डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट? Let us suppose this is a source of light and it is placed at the focus point of this lens L1, right? From this source of light the rays are coming and it become parallel to principal axis and made to incident on a slit of width AB, and this AB is equal to A, and through the lens these rays, the screen is placed at the focus point of this lens L2. Now these rays after converging. Now the screen L2 is placed this lens L2 is placed at the after this slit, and the screen is placed at the focus point of this lens L2. Why it is placed at the focus point of L2? So that the image which is formed is bright. Now corresponding to these parallel waves, the wavefront is WW dash. This is a plane wavefront, right students? Now after refraction, you can say when this plane wavefront incident on this AB, then what happens? All the wavelets, every point on this wavefront act as a source of disturbance. So every point act as a source of disturbance and these are wavelets. So all the wavelets cover equal distance in reaching the point C. All the wavelets cover equal distance in reaching the point C. C point पे, तो C point पे path difference कितना हो जाएगा? 0. Path difference is 0. So point C is a point of central maximum. पॉइंट सी क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 0. तो आपको एक यहाँ सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ नजर आएगा. सो अ सेंट्रल ब्राइट बैंड इज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट. ब्राइट बैंड इसमें formed. Now if we consider this point P, what is the intensity at the point P? That depend upon the path difference between the waves which are reaching at this point P. किस पर डिपेंड करेगा ये? पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स विच आर रीचिंग एट द पॉइंट पी. इंटेंसिटी एट पॉइंट पी डिपेंड अपॉन द path difference between
the waves reaching at point P, राइट। तो अगर हम ये कहें कि ये सारी वेवलेट्स कितना एंगल बना रही है, थीटा, कितना एंगल बना रही है, थीटा, एंड व्हाट इज दिस विड्थ, A. नाउ what is the path difference between the waves reaching at this point P? Path difference is at point P, path difference is BP minus AP. आप extreme corners ले लीजिए. The wavelet which start from point B to P, it covers BP distance, and from here it is AP. Now this BP minus AP is the path difference. Or you can say, if you draw a perpendicular AN, अगर आप यहाँ पर एक AN परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो पाथ डिफरेंस इज ऑल्सो BN. पाथ डिफरेंस कितना होगा, BN. अगर ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी कितना होगा, थीटा. एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, आप ये देख सकते हो, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. तो यहाँ से अगर हम BN इन ट्राइंगल ANB कैलकुलेट करते हैं, इन ट्राइंगल, ये A है, ये B है, और ये क्या है, N. तो इन ट्राइंगल ANB आपको क्या निकालना है, BN. BN डिवाइड बाई AB इज साइन थीटा. तो BN कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू A साइन थीटा. दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स विच आर रीचिंग एट दिस पॉइंट P. तो अगर अब हम निकालेंगे कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा. स्टूडेंट, जो इंटरफेरेंस में कंडीशन ऑफ मैक्सिमा थी वो यहाँ रिवर्स हो जाती है. इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, if path difference is lambda, then at point P, then point P is a point of first secondary minima. इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. पॉइंट P इज अ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है देन पॉइंट P इज अ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. कैसे एक्सप्लेन करोगे, यू कैन डिवाइड द होल स्लिट इनटू टू पार्ट्स. ये स्क्रीन है, ठीक है, आपके पास ये AB स्लिट विड्थ थी, और यहाँ से जो वेवलेट्स आ रही हैं इस पॉइंट P पे पहुँच रही हैं, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा. कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा अगर हम बात करें तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई. इसका मतलब क्रेस्ट किस पे फॉल करेगी, क्रेस्ट पे. तो पॉइंट कैसा होना चाहिए था, मैक्सिमा का, बट इट इज़ नॉट सो. टू एक्सप्लेन दिस वी डिवाइड होल ऑफ दिस स्लिट इनटू टू पार्ट्स. आप इस पूरी स्लिट को किस में डिवाइड करेंगे, टू पार्ट्स में. होल ऑफ दिस स्लिट AB इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है. तो अगर हम ये मान ले O, सो द वेवलेट्स AB इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो अगर हम बात करें AO, व्हाट इज द वेव पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स कमिंग फ्रॉम AO का ये क्या हो जाएगा, A/2 साइन थीटा इज इक्वल टू lambda by 2. Can I write this equation? If path difference at point P is lambda, this means A sin theta is equal to lambda. तो हमने इसको क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो A/2 sin theta is equal to lambda by 2. तो भी यही रहेगा आपका कंडीशन. This implies A sin theta is equal to lambda. It means the waves which are coming from first and upper, from point A and O, they have a path difference of lambda by 2, and phase difference कितना होगा, पाई का. फेज डिफरेंस पाई का मतलब क्रेस्ट किस पे फॉल करी है, ट्रफ पे, ठीक. क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल करेगी तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी. सो यू कैन एक्सप्लेन इट, द होल ऑफ द, if you want to explain it, the whole of the slit is divided into two parts, and the wavelets coming from upper and lower half having the path difference of lambda by 2, ठीक है. और lambda by 2 के corresponding phase difference कितना होता है, पाई. तो पाई का मतलब क्रेस्ट किस पे फॉल करी है, ट्रफ पे, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेकेंडरी, दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, एंड फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, दिस पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू A साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा. अब आप इस पूरी स्लिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में. डिवाइड होल ऑफ दिस स्लिट इनटू 4 पार्ट्स, so that the waves coming from individual parts, यहाँ से AB से 4 पार्ट्स में, यहाँ हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 1 2.
यहाँ इसको 1, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4. ठीक है, तो ये a/4 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 और हर एक से जो वेव्स आएंगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होता जाएगा, λ/2. From each part, the waves which are coming, they have the path difference of λ/2. That's why this point is a point of minimum intensity. You can say that a/4 sin theta is equal to λ/2. इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल होके यहाँ 2 आ जाएगा. a sin theta is equal to 2 lambda. So in the same way, if you say what is the condition for minima, the condition for minima is a sin theta must be equal to n lambda. और n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू so n equal to 1 2 3 up to so. ये आपको कंडीशन डायरेक्टली लर्न करनी है. स्टूडेंट, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन डायरेक्टली लर्न इट. नाउ कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा. कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट. कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा. अब मैक्सिमा के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, एक तो आपका ब्राइट सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा. फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ बनेगा, इफ a sin theta is equal to 3 λ/2 means you can split up into 3 parts, λ/2 plus λ/2 plus λ/2. ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें कि इस पॉइंट P पर जो वेव्स आ रही हैं यहाँ से, वो 3 पार्ट्स में से आ रही हैं, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. और इनके बीच का पाथ डिफरेंस कैसा होगा, दिस इज λ/2. और जो थर्ड पार्ट से वेव आएंगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस फिर लैम्डा. तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट से जो वेव आएगी उनके बीच में देखो क्या होगा, क्रेस्ट पे फॉल कर जाएगी. तो कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पॉइंट पे क्या होगी, देयर इज सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू दीज फर्स्ट 2 पार्ट्स. द कॉन्ट्रीब्यूशन इज जीरो, राइट, no intensity of light. लेकिन only due to third part of slit there is a intensity of light at point P. तो यहाँ intensity of light decrease होती जाएगी with the secondary maxima. और अगर हम बात करें secondary maxima, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, a sin theta is equal to 5 λ/2. तो अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, प्लस λ/2 प्लस λ/2. 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो 5 पार्ट्स से जो वेव्स आ रही हैं उन सब के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2. ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे. सिर्फ ओनली देयर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट. ओनली ड्यू टू फिफ्थ पार्ट देयर इज अ intensity of light at point P. ठीक है, तो अब अगर जनरलाइज करें तो a sin theta is equal to 2n plus 1 λ/2, n equal to 1 2 3 up to so on. तो ये हमने डिस्कस की सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन. मिनिमा की कंडीशन यहाँ पर देखो, पाथ डिफरेंस जब n लैम्डा हो, जबकि इंटरफेरेंस में ये किसकी कंडीशन थी, ब्राइट फ्रिंज की. यहाँ पर ये किसकी कंडीशन है, 2n plus 1 लैम्डा बाय मैक्सिमा की. और ये वहाँ पर किसकी कंडीशन थी, इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंजेस की. सो इफ आई विल से प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो सबसे पहले सेंटर में डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा. दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड, जहाँ पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0. अब आपका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बनेगा प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा पे. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट बनेगा, इसकी इंटेंसिटी आपकी ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम, ये सेम नहीं रहेगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपका क्या होता जा रहा है, हेयर इट इज ड्यू टू 1/3 पार्ट, हेयर इट इज ड्यू टू 1/5 पार्ट. इट इज प्लस 2 लैम्डा, इट इज माइनस 2 लैम्डा, राइट. और अगर मैक्सिमा की कंडीशन देखें तो ये 3 λ/2, ये 3 माइनस 3 λ/2. तो ये ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म्ड विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी. डिक्रीजिंग इंटेंसिटी क्यों हो रही है, इट डिक्रीजेस. Why it decreases? Because the contribution of the contribution of secondary maxima is decreasing with the change in n, 1 2 3 4 up to so on, right. This pattern is clear. Okay, student, in the next video I will tell you about the width of central maxima. Thank you.